request you all to be seated. Well, hello friends, a very warm good evening. A warm welcome to you all as well for the Smart Money Seminar 2024 organized by PIFA, that is Pune Investment and Financial Ambassadors Association. My name is Harshvardhan Bhusari. I am the past president of PIFA and currently one of the directors. I will be your host for today evening. Thank you for taking time out of a long weekend and attending this seminar on a Saturday evening. We will ensure that it is time well invested. We are also doing live streaming of the event on YouTube. I cordially welcome all our friends who are watching this live in different parts of the country and abroad. A very warm welcome to them as well. We will have a small inauguration ceremony by lighting the lamp. I invite our distinguished speakers for the evening to please come on the dais. Mr. Siddharth Bhattacharya, Vice President and Head, Retail Advisory Service and Internal Sales at Franklin Templeton Mutual Fund. Mr. Swaroop Mohanty, Vice Chairman and CEO at Mirae Asset Mutual Fund, and Mr. Ravi Gopal Krishnan, Chief Investment Officer, Equity at Sundaram Mutual Fund, request the leadership team of PIFA to join the guests on the dais. It's great to see you in such large numbers with a full house already in the downstairs. Some balcony, some seats are there. Otherwise, it's a full house. Wonderful to have you all here. Round of applause. Yeah, I request the dignitaries to please stand for one photograph. Yeah, thank you so much. May I request all of you to please take your seat in the auditorium? Okay, friends, we believe that investor awareness programs are the stepping stone for investor of any type, and a seasoned one as well as a newcomer. These programs help any investor to become more mature. Remember, listening and adhering to wisdom from expert speakers has always to be the preferred choice. It helps investors to differentiate between what is called as noise and things that matter. Well, India has some 5 crore Rummy Circle players, 21 crore Dream 11 users, and only 4 crore unique mutual fund investors. Now, these figures bring back the issue of a common man taking some unusually high risk in his or her quest to get higher returns. Unfortunately, almost every other day, there is a news in our local newspaper about investor being defrauded of his hard-earned money by promise of some unusually high returns. Well, this lure of high returns will always be attractive to people. However, understanding the risk which you are taking for this is the key thing. It is because of these reasons that such investor awareness seminars are an essential need of the society. We hope to create informed investors through these seminars. It is PIFA's endeavor to bring to you the best of speakers to help you take smart decisions regarding your money matters. Just to inform you about the event flow for today evening, we will begin with a welcome speech by Vivek Bajaj, one of the directors of PIFA, and then the president of PIFA, Santosh Pardeshi. Our first speaker for the evening will be Mr. Siddharth Bhattacharya, followed by Mr. Swaroop Mohanty, and then Mr. Ravi Gopala Krishnan. I am sure that all of you will be getting some huge value addition by attending this seminar. So without much delay, I would like to welcome one of the PIFA directors, Mr. Vivek Bajaj, to speak to all of you.
Yes, Mr. Vivek. A round of applause for him, please. थँक यू हर्ष. नमस्कार पिंपरी चिंचवड. आज आपल्या पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रथमच एवढ्या मोठ्या स्वरूपामध्ये आपण IFP करतोय, इन्व्हेस्टर अवेअरनेस प्रोग्राम. पिफा ही जे असोसिएशन आहे गेल्या 14-15 वर्ष झाले पुण्यामध्ये अतिशय जोरदार काम करत आहेत. आपल्याला ह्याच्यामध्ये पिफासाठी आपल्याला अवॉर्ड पण मिळालेला ऑल ओव्हर इंडियामधनं म्युच्युअल कॅफेकडनं, फार मोठी गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर आपल्यातले पिंपरी चिंचवडचे त्यांनी काही ॲक्टिव्ह मेंबर शोधून आम्हाला पण त्यांनी पिंपरी चिंचवडमध्ये डायरेक्टर म्हणून त्यांनी स्थान दिलं. त्याच्यासाठी पिंपरी चिंचवडतर्फे आमच्या असोसिएशनचं पिफाचं खूप खूप थँक्यू. माझी विनंती आहे पिंपरी चिंचवडकरांनी जोरदार टाळ्या वाजवून पिफाचं स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे एक IFP घ्यायची हे खूप मोठं चॅलेंजिंग काम आहे. कारण काय माहिती का, काही गोष्टी मला चांगलं आठवत आहे कारण लास्ट 25 वर्षाचा अनुभव आहे. चांगल्या गोष्टीच्या ठिकाणी लोकांना बोलवायला गेलं तर कुणी येत नाही आणि नको त्या ठिकाणी सर्वजण गोळा होतात. तर बऱ्याच जणांना मी रिक्वेस्ट करून सगळ्यांना इन्व्हेस्टमेंट अवेअरनेस प्रोग्रामसाठी आम्ही रिक्वेस्ट करून सगळ्यांना बोलवलं. आम्हाला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. मला वाटतं वरती बाल्कनी पण जवळपास पूर्ण भरलेली आहे, खाली पण जागा नाही आहे. तर हे IFP घेण्यासाठी मी फार आग्रही होतो आणि पिफा मेंबर जे आहेत, पिफाचे डायरेक्टर आहेत पुण्यातले, त्यांनी पण मला सपोर्ट केला. त्याचप्रमाणे पिंपरी चिंचवडमधील जे माझे सहकारी आहेत, मित्र आहेत, कलिग्स आहेत माझे, ते पिफा मेंबर आहेत, नॉन पिफा मेंबर आहेत, MFDचे आहेत, म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर आहेत, त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट दिला. मागच्या 15 दिवस झालं हेच काम मामध्ये अतिशय गुंतलेलं होतं. सगळेजण फार जोरदार प्रतिसाद मिळाला. त्याच्याबद्दल मी मनपूर्वक पिफातर्फे, आमच्या असोसिएशनतर्फे मी स्वागत करतो. आज नक्कीच तुम्हाला इथून चांगली मेजवानी मिळणार आहे डेफिनेटली. कारण स्पीकर मला माहिती आहेत की आपल्याला साध्या आणि सोप्या भाषेत आपल्याला नक्कीच जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करणार आहे, जेणेकरून आपल्याला फ्युचर भविष्यामध्ये आपल्या पैशाचं कसं प्लॅनिंग करता येईल हे आपल्याला नक्कीच तुमचे आपले डिस्ट्रीब्युटर सांगतील, आपले स्पीकर सांगतील. त्याचप्रमाणे आपले जे ॲडवायझर आहेत, आपले जे डिस्ट्रीब्युटर आहेत, ते पण तुम्हाला चांगला सल्ला देतील. मी सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद देतो. माझ्याकडनं कोणाचं राहिलं असेल नाव वगैरे तर सॉरी. मी खूप खूप सपोर्ट केला सगळ्यांनी, त्याच्याबद्दल धन्यवाद देतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Vivek ji. It's time to invite the PIFA president, Mr. Santosh Pardeshi. He will tell you more about what is PIFA and what exactly we do. So please welcome Mr. Santosh Pardeshi. नमस्कार. येथे जमलेल्या पिंपरी चिंचवडमधील तमाम गुंतवणूकदारांचे मी पिफाच्या वतीने प्रेसिडेंट संतोष परदेशी सहर्ष स्वागत करीत आहे. PCMC एरियामधील गुंतवणूकदारांचा हा उत्साह पाहून खरं आम्हालाही खूप आनंद झाला आहे. खरं म्हणजे यावर्षी जेव्हा मी प्रेसिडेंट पदाचा कारभार हाती घेतला, एप्रिलमध्ये आमच्या हे होत असतात निवडणुका म्हणजे डिक्लेअर केलं जातं, त्याच वेळेस मी ठरवलं होतं की बाबा आम्ही पिफामध्ये पुण्यामध्ये गेली 8 वर्ष झाले कार्यक्रम घेत आहोत. हा मला वाटतं 27वा कार्यक्रम आहे अशा पद्धतीचा. पुण्यामध्ये आम्ही बालगंधर्व, यशवंतराव चव्हाण, बरेचसे ऑडिटोरियम, कर्नाटक हायस्कूल वगैरे, गरवारे कॉलेज, असे खूप मोठमोठ्या ऑडिटोरियमला आम्ही कार्यक्रम केलेले आहेत. परंतु PCMCला करण्याची आमची आत्तापर्यंत डेअरिंग झालेली नव्हती. पण ज्यावेळेस मी यावेळेस कारभार घेतला त्यावेळेस असं वाटलं की बाबा PCMCला आपण हा कार्यक्रम करायला पाहिजे. इथल्या खूप मेंबर लोकांचाही, आमचे जे मेंबर आहेत PCMC एरियातले, त्यांचाही खूप आग्रह होता. परंतु इथलं नियोजन या सगळ्या गोष्टी पुण्यावरून इथे येणं थोडासा डिफिकल्ट असल्यामुळे आम्ही ते करत नव्हतो. पण यावेळेस आम्ही सुरुवातीलाच असं ठरवलं होतं की PCMCमध्ये हा कार्यक्रम आपण घेऊया आणि इथल्या जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनाही आपल्याला साक्षरतेचं काम करायला पाहिजे. दुसरं म्हणजे पिफाचे जे कार्य आहेत, पिफाच्या बाबतीमध्ये पिफा ही असोसिएशन 2011 साली सुरू झाली. आज 13 वर्ष झालेले आहेत पिफाचे. साधारणतः एक 300 ते 350
जे डिस्ट्रीब्युटर आहेत ते आमचे सभासद आहेत आणि त्या सभासदांमार्फत आम्ही फिफा असोसिएशन त्या सभासदांसाठी सुद्धा दर महिन्याला 2 कार्यक्रम एज्युकेशनल सेमिनार त्यांचे घेत असतो आणि प्लस वर्षातनं 3 कार्यक्रम किंवा 4 कार्यक्रम आपण गुंतवणूकदारांसाठी घेत असतो. तर आजचा ह्या वर्षीचा हा शेवटचा कार्यक्रम, याच्यापूर्वीचे 2 कार्यक्रम तिकडे झालेले आहेत. फिफा ही देशातली 1 नंबरची असोसिएशन आहे आणि फिफाचं जे इन्व्हेस्टर हा जो युनिक कार्यक्रम आहे हा देशभरात कुठेही कुठली असोसिएशन घेत नाही, फक्त फिफाच घेते. आणि फिफाला भरपूर प्रकारचे अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत. अवेअरनेसच्या बाबतीमध्ये तर आहेच आहेत. परत दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आपले ॲडवायझर आहेत त्या ॲडवायझर लोकांनाही आपण एज्युकेट करण्याचं काम करतो, ते मोठ्या प्रमाणात करत असतो. दुसरं म्हणजे मला एक तुम्हाला थोडं अवेअर करायचं आहे की आपलं जे पुणे शहर आहे, आपले जो आता म्युच्युअल फंडाची जी मालमत्ता आहे म्हणजे जे गुंतवणूक आहे ती जवळपास 50 लाख करोडच्या वरती गेली, 52 लाख करोड आजची व्हॅल्युएशन आहे. त्याच्यामध्ये पुण्याचा वाटा जो आहे तो पुण्याचा 2,17,000 करोड आहे पुणे शहराचा. पण याच्यात मला थोडंसं दुःख असं वाटतं आहे की त्यातला 27% भाग हा पिंपरी चिंचवडचा आहे. खरं म्हणजे पिंपरी चिंचवडमध्ये खूप मोठी इंडस्ट्रीज आहे, खूप कामगार आहेत, खूप डेव्हलप आहे एरिया. पण एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये एवढा अवेअरनेस इथं झाला की नाही मला माहीत नाही, की त्यामुळे ती एक उणीव भासत होती की आपल्याला ह्या भागातसुद्धा आपल्याला काम करायला पाहिजे. जसं पुण्यामध्ये कॉन्ट्रिब्युशन चांगल्या प्रकारे येतं. पुणे हे मेट्रो सिटी म्हणजे 4 नंबरचं शहर आहे ज्याची गुंतवणूक सगळ्यात जास्त आहे. आपण कलकत्त्याला पण मागे टाकलेलं आहे मेट्रो सिटी असून कलकत्त्याला. पहिले मुंबई आहे, नंतर दिल्ली, नंतर चेन्नई आणि पुणे 4थ्या नंबरवरती आहे. पण पुण्यामध्ये 2 पार्ट जर केले तर PCMCचा कॉन्ट्रिब्युशन थोडंसं कमी आहे. त्या दृष्टिकोनातून पण आमचा प्रयत्न होता की PCMCमध्ये आपल्याला एज्युकेशनल अवेअरनेस घ्यायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण मी आता फार वेळ घेत नाही कारण वक्ते पण आलेले आहेत, वेळ झालेला आहे, कार्यक्रम पूर्ण फुल झालेला आहे. तुमच्या सर्वांचे मी फिफाच्या वतीने अभिनंदन करतो आणि तुम्ही आजच्या कार्यक्रमाचा निश्चित लाभ घ्या, त्याचा तुम्हाला निश्चित फायदा होईल. दुसरी गोष्ट म्हणजे इथे जे इन्व्हेस्टर लोक आलेले आहेत त्यांना माझी एक रिक्वेस्ट आहे की आत्ताच हर्षवर्धननी सांगितलं की आपल्या क्रिप्टोमध्ये किती लोकांच्या इन्व्हेस्टमेंट आहेत किंवा ऑनलाईन गेममध्ये किती लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट आहे. लोक तिथं रिस्क घ्यायला तयार असतात आणि काय होतं की आपल्या म्युच्युअल फंडमध्ये जिथे खात्रीशीर रिटर्न मिळणार आहेत तुम्हाला, फक्त ते खात्रीशीर रिटर्न मिळणार असून इथे तुमचं कॉन्ट्रिब्युशन कमी आहे, तर ते कॉन्ट्रिब्युशन तुम्हाला वाढवायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही फिफाचे जे मेंबर आहेत, तुमचे जे कोणी ॲडवायझर असतील इथे आमच्या असोसिएशनचे जे मेंबर आहेत ते इथले काही मेंबर आहेत, तर जे तुमचे कारण काय होतं याच्यामध्ये ही दुधारी तलवार आहे. ही जी तुमची गुंतवणूकची मालमत्ता वाढवण्याचं जे काम केलं जातं ही दुधारी तलवार आहे. याच्यामध्ये कसं आहे लोक पैसे, बऱ्याच जणांचा गैरसमज पण होतो की पैसे बुडाले किंवा हे झालेले आहे. परंतु तुम्ही जर योग्य सारथी बरोबर घेतला, कारण कसं आहे महाभारतात सुद्धा श्रीकृष्णाचा जो रोल होता त्यामुळेच त्यांना पांडवांना युद्ध जिंकणे शक्य झालं. तसं फिफा असोसिएशनचे जे ॲडवायझर आहे त्या लोकांच्या सहकार्याने तुम्ही निश्चितपणे याच्यामध्ये भाग घ्या. तुमचा निश्चितपणे मालमत्ता किंवा तुमचं जे वेल्थ क्रिएशनचा जो पार्ट आहे तो अजून जास्त सोपा होईल आणि त्या वेल्थ क्रिएशनच्या पार्टला तुमचा मी शुभेच्छा देतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद. थँक्यू संतोषजी. वेल, खूपच छान वाटतं आहे कारण की आम्ही पहिल्यांदा हा कार्यक्रम PCMCमध्ये करतो आहे आणि ॲट 5:45 all of you were in time and the house is already full. If I see only few seats in the balcony are left, else it is all houseful. So a big clap for yourself, please. आणि ह्या अनुभवावरनं मी हे आत्ताच सांगू शकतो की नाव दिस बिकम्स ॲटलिस्ट अ इयरली फीचर फॉर PCMC ऑल्सो आणि प्रत्येक वर्षी आम्ही इथे येऊन हा प्रोग्राम करणार हे नक्कीच चाललं आहे. तर थँक्यू सो मच फॉर दिस रिस्पॉन्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो मतलब की बातें सब लोग समझ जाते हैं लेकिन बातों का मतलब कोई नहीं समझता. सो निवेश की बातें, इस विषय पर हमारे पहले वक्ता आपसे बात करेंगे. मेरी गुजारिश है कि न सिर्फ आप इनसे मतलब की बातें सीखें बल्कि इनकी बातों का मतलब भी जानें. On this note, I would like to invite Harish Naganna on the stage to introduce Mr. Siddharth Bhattacharya from Franklin Templeton Mutual Fund. Thank you, Harsh, and good evening. It gives me immense pleasure and honor actually to introduce one of the esteemed speaker. And fortunately, he was sitting beside me, and then he said, "ये उनके शिक्षा भूमि है." So probably we are going to get a lot of insights and sharing. So let me introduce him.
He is the head retail advisory services and internal sales at Franklin Templeton, and industry veteran for over 2 decades of experience, out of which the last 18 years has been with Franklin Templeton. In his current role, he is based out of Mumbai and is responsible for building strategic business partnership at Franklin Templeton. In addition to his team, he is also responsible for the Pan-India virtual team based out of Hyderabad. Siddharth started his career with Aditya Birla Group and joined Birla Global Finance Limited in the year 2001 and later worked for Birla Sun Life Mutual Fund till 2004. In his 18 years stint with Franklin Templeton, he has worked across multiple geographies and roles. And prior to his current role, he was the regional head, South India based at Bangalore. Also with Franklin Templeton East India at Calcutta. Mr. Bhattacharya is a commerce graduate from the University of Calcutta and earned his management degree specialized in marketing from our own Pune University, Savitribai Phule University in the year 2001. And that's why he says, ye inki Shiksha Bhumi hai. He is a university topper and secured the 3rd rank during his MBA curriculum. So before inviting, round of applause. Before inviting him, so please come. I would just wanted to share one quote from Robert Kiyosaki. I know most of the people would know him. And I guess this is the quote which would make an impact today. It is not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it. Thank you. So please come. Is this audible? Great. Thank you, Harish. Let's have a big round of applause for our first speaker. सर आपकी शिक्षा भूमि में आपका स्वागत है. Thank you. Okay, thank you very much. लोगों के पास कर्म भूमि होता है, जन्म भूमि होता है, ये मेरे लिए शिक्षा भूमि है. So thank you very much. I am very happy that 2001 I passed out from Pune University. 2024 I am addressing such a lovely audience. So God has been kind, lot of blessings from your side. Can we have the presentation, please? So before I start off, मुझे मराठी आती नहीं है, बंगाली आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, but let me try and attempt a few lines of Marathi for all of you. थोड़ा भूल चूक हो जाएगा तो माफ़ कर दीजिएगा. सुतीच्या दिवशी आज तुम्ही या पिफॅच्या सेमिनार मध्ये आला, त्यासाठी मी तुमचा आभारी आहे. आणि मनापासून तुमचे स्वागत करतो. Thank you very much. And what is interesting is हम लोग निवेश के बारे में बात करेंगे. निवेश क्या होता है? निवेश इन्वेस्टमेंट्स होता है. बहुत सिंपल चीज़ है. कई लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हम लोग सिंपल करते हैं, फिर सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. सो लेट्स गेट गोइंग. तो आज का एजेंडा क्या है? अगला 30-40 मिनट हम लोग बात क्या करेंगे? अगला 30-40 मिनट हम ये समझेंगे कि समय का परिवर्तन कैसे हुआ है. हाउ टाइम्स हैव चेंज फॉर अस. दूसरा, अगर समय परिवर्तन हुआ है, हमारा निवेश का अंतर, निवेश का ज्ञान, निवेश का सोच, निवेश का समझ, उनके अंदर कैसे परिवर्तन हुआ है, और हालांकि कोई भी परिवर्तन हुआ है या नहीं. तीसरा, अगला 10 साल, कई बोलते हैं अगला 100 साल. मैं मानता हूँ अगला 100 साल भारत के लिए है, लेकिन अगला 10 साल के समय अगर हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन अगला 10 साल भारत के लिए क्यों है. Opportunities to invest. First 3 points actually takes you to the 4th point कि हमारे पास औधाएं क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है निवेश करने के लिए. 5th point, diversification is essential. आप लोग ज़रूर इस चीज़ को मानते होंगे कि एक अंडा अगर एक बास्केट में रखा जाए तो कई सारे अंडा एक बास्केट में नहीं रखा जाता है, क्योंकि अंडे टूट जाते हैं, बास्केट में अंडा गंदा हो जाता है. सो डिवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल. वी विल ट्राई एंड फाइंड दिस आउट. एंड मेरा बहुत करीब की ये पॉइंट है.
हमारा सोच, हमारा समझ, हमारा समय अगर चेंज हुआ है तो इट इज़ टाइम फॉर टू चेंज द वे वी इन्वेस्ट, राइट? फर्स्ट स्लाइड, ज़माना बदल गया। जैसे मैंने कहा कि हम लोग, कई सारे लोग इस चीज़ को पहचान पाएंगे, दैट टाइपराइटर, फ्लॉपी डिस्क, टेलीफोन्स, ये बहुत प्राचीन काल के समय हैं। आज की डेट में जो 1985 के बाद बर्थ हुआ है, वो लोग इस ऑन द राइट हैंड साइड दे विल रिलेट मोर, बिकॉज इट्स अ लैपटॉप, इट्स अ डीवीडी, इट्स एन आईपैड। सो डेटा संरक्षण का, डेटा स्टोरेज का परिभाषा हम लोगों ने चेंज कर दिया। सो बंगाली में इस चीज़ को बोलते हैं शील नोड़ा, आई डोंट नो द मराठी वर्जन ऑफ इट, एंड इसको बोलते हैं चूल्हा। लेकिन आज की डेट में इंडक्शन कुकर एंड मिक्सी हैज़ टेकन द साइड। मुझे तो वो दिन भी याद है जब बोलते थे कि तेरे पास गैस है, मतलब हाँ मेरे पास गैस है। मेरे पास 2 सिलेंडर है, तो दूसरा वाला बोलता था मेरे पास 4 सिलेंडर है, राइट? सो द डेज हैव चेंज्ड। टुडे we work, we cook, we live, we eat. Everything has changed. Let us see the way we travel. पहले ये on the left hand side, all those are born around the 1965, 70, 75 will relate to the left hand side. But the right hand side will be related to the 1980s and the 85s born people. कितने लोग यहाँ वंदे भारत में ट्रैवल कर चुके हैं? हाथ उठाइए एक बार। What is the difference? समय तो गाड़ी आपको एक ही जगह, एक गंतव्य स्थल से दूसरा गंतव्य स्थल तक लेके जाता है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक, जल्दी पहुंचते हो। दूसरा डिफरेंस आपका एक्सपीरियंस। तीसरा डिफरेंस खाना अच्छा देता है। चौथा डिफरेंस अभी वाईफाई भी आ रहा है। सो द एक्सपीरियंस हैज़ चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड, आवर ट्रैवल पैटर्न हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। ये एक अपना गली वाला किराना शॉप है। वो मोहन की दुकान से, बेटा जब नीचे जा रहा है ना, मोहन की दुकान से 2 केजी आटा और 3 केजी चीनी लेके आ जा। तो वो मोहन की दुकान आज की डेट में बहुत कम हो गया है। हालांकि ये नहीं बोलूँगा कि बंद हो गया है, बट बहुत कम हो गया है। एंड नाउ आवर शॉपिंग एक्सपीरियंस हैज़ ऑल्सो चेंज। तो अभी क्या होता है, अभी वी डोंट कुक एट होम। ऑन द वीकेंड वी गो आउट, हम लोग एक मूवी देखते हैं, शॉपिंग के एक्सपीरियंस का मज़ा लेते हैं, फिर बोलते हैं रात का खाना घर पे नहीं पकाएंगे, बाहरी खाना खा लेंगे। और क्या खाएंगे? खाना भी चेंज हो गया, राइट? पहले होता था चावल, दाल, रसा, लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें, मेरा 11 साल का बेटा है, मैं उससे समझता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज हो गए। स्पेगेटी, ब्रोकली, पिज़्ज़ा, स्पिनच, बर्गर्स, राइट? ऑल ऑफ दीज हैव चेंज्ड. So the diktat, the lingo, the conversations, everything has changed, right? दूरदर्शन, चित्रहार, बुधवार, राइट? हम लोग पूरी हफ्ता वेट करते थे वो चित्रहार आने के लिए। हम लोग पूरी हफ्ता वेट करते थे कि वो सैटरडे को कौन सा हिंदी मूवी आएगा, राइट? लेकिन मुझे तो वो ज़माना भी याद है जब हमारे घर में पहले क्या होता था, एक हाउसिंग सोसाइटी में एक ही टीवी होता था, और वो एक टीवी में पूरा बिल्डिंग आ जाता था, चटाई ज़मीन पे बिछाया जाता था, और पूरा सोसाइटी के लोग आ जाते थे, और चित्रहार, रंगोली, हिंदी मूवी, एंड रविवार सवेरे 10 बजे रामायण या महाभारत प्ले होता था। एंड जब एंटीना का वो सही तरीके से नहीं आता था तो 3 लोग एक साथ जमायत खड़े होते थे। वो ऊपर वाला छत पे आ रहा है, कनेक्शन आ रहा है, द बीच वाला यूज्ड टू से हाँ आ रहा है, एंड ही यूज्ड टू कम्युनिकेट टू द टीवी गाय सेइंग दैट आया, राइट? बट आज की डेट में थिंग्स हैव चेंज्ड. वी हैव गॉन बियॉन्ड एंटीना, वी हैव गॉन बियॉन्ड दूरदर्शन. नाउ आवर होल एक्सपीरियंस इज अराउंड OTTs, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम. उस समय पूरी सोसाइटी में एक टीवी होता था, आज की डेट में एक 3 BHK फ्लैट में 3 टीवी होता है. हर रूम में एक टीवी होता है, क्योंकि टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड. सीनियर सिटीजन्स, दे सी सत्संग एंड द सास बहू सीरियल्स. Juniors, they would see a Marvel or a Captain America. And couples, they would see a donkey or an animal. So tastes and preferences have changed.
मैंने ये बैकग्राउंड आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों को ये पहले मैं कन्विंस करूं कि समय का परिवर्तन हुआ है कि नहीं? येस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। फैंटास्टिक, लवली ऑडियंस। सो रिटायरमेंट जो शब्द है ना, वो हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि रिटायरमेंट मतलब बुढ़ापा। और ये रिटायरमेंट का शब्द आज की डेट में रिटायरमेंट नहीं किया जाता है, आज की डेट में बोला जाता है दूसरा इंग्लिश टेक्निकल टर्म, फाइनेंशियल फ्रीडम। सो retirement word has undergone multi-various kind of changes. एंड अगर आप देखोगे पहले का ज़माने का रिटायरमेंट क्या होता था और अभी का ज़माने का रिटायरमेंट क्या हो रहा है, तो पहले एक आदमी रिटायर करता था 60 साल, और 60 साल अगर रिटायर करता था 70-75 साल तक वो जीता रहता था. सो 15 years after retirement he used to have that time. Lifespan 70-75 years, retired life of 10-15 years, joint families, right? And dependent on children, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा. लेकिन आज की डेट में ये सारी चीज़ें चेंज हो गया है. आज की डेट में कोई रिटायरमेंट नहीं बोलता है, बोलता है मैं फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता हूँ, मैं जल्दी जल्दी काम छोड़ के अपना पैशन फॉलो करूँगा, गाना गाऊँगा, गिटार बजाऊँगा, कुछ और करूँगा. दूसरी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने की वजह से अभी और 70-75 साल तक लोग जिंदा नहीं रहते हैं. लोगों का हेल्थ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है. सो दे स्टे अलाइव टिल 85-90 ईयर्स नाउ. तो जो 10-15 साल का रिटायर्ड लाइफ होता था वो आज की डेट में 25-30 साल का हो गया है. न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया है. सो आई डोंट डिपेंड ऑन माई सन टू टेक केयर ऑफ मी while I will grow old. He's sitting here in this hall only. But the point is that one has to prepare for his own retirement because things have changed, life has changed. Tastes, preferences have changed, objectives have changed. When I speak to my son, he doesn't know whether he will be in India, in Pune, in Bangalore. But my father, when I used to speak to my father, I had more or less the roti kapda makan thought. I had more or less कि मुझे कहाँ काम करना है, stability, income over a period of time, but today's generation is completely changed. So अगर ये सारा चीज़ें चेंज हुआ है, मेरा रहन सहन का तरीका, मेरा खाने का तरीका, मेरा रिटायरमेंट का तरीका, तो then how have our investments changed? So भारतवर्ष कहाँ, इसके लिए ना समझना पड़ेगा भारतवर्ष निवेश कहाँ करता है. भारतवर्ष निवेश करता है 50% प्रॉपर्टी में, 15% गोल्ड में और 15% बैंक डिपॉजिट्स में. टोटल कितना हुआ? 50, 15, 65, 65 और 15, 80. 80% इन्वेस्टमेंट्स गोज इनटू दिस टॉप 3 बकेट्स. अभी इस चीज़ को और थोड़ा करीब से समझते हैं. हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का हिंदी रूपांतर टर्म है महंगाई. हमारा जो महंगाई है वो 6.8 है. समझने के लिए 6% ले लेते हैं. तो कोई भी एसेट क्लास में मैं निवेश करूं, तो अगर मैं 7% वाला ब्याज वाला एसेट क्लास में मैं निवेश करता हूं, मान लीजिए बैंक एफडी में निवेश करता हूं 7%, और मेरा इन्फ्लेशन है 6%, तो मेरा रिटर्न कितना हुआ? 1%. दैट इज कॉल्ड द रियल रेट ऑफ रिटर्न, राइट? दैट्स द So anywhere where you invest, it has to be more than 6%. पिछले 20 साल का अगर एवरेज है मेरा 6% का इन्फ्लेशन, आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करो, वो आपको 6% से ज़्यादा देना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है. फिक्स डिपॉजिट अगर 7% देता है, लेकिन उसके बाद अगर टैक्स करके आप देखोगे तो वो और भी कम हो जाता है, 1% नहीं रहता है. आगे बढ़ते हैं. ये है आपका फॉलिंग इंटरेस्ट रेट. जैसे मैंने बोला कि फिक्स डिपॉजिट्स में हालांकि कमते कमते कभी 1995-96 में आपका एफडी का रेट होता था 13%, आज की डेट में 6%. सीनियर सिटीजन में 25-50 पैसा और मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा. इसके बाद आते हैं रियल एस्टेट में. आवर इनेट लव फॉर रियल एस्टेट, द ओनली एसेट क्लास, एंड वी कीप, व्हेन आई स्पीक टू इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री, व्हेन आई स्पीक टू डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस द कंट्री, आई सी कि प्यार for real estate, pyar for property is only growing and growing. But let us understand and see कि rental yield बहुत simple सा एक concept है. अगर मेरा बैंगलोर में 2 BHK का घर है और उसका
कैपिटल कॉस्ट 1 करोड़ है और मुझे महीने का 50,000 रुपया रेंट मिलता है, तो 50,000 इंटू 12 मंथ्स कितना हुआ? मेरा मैथ्स थोड़ा खराब है। 6 lakhs। 6 lakhs डिवाइडेड बाई 1 करोड़ कितना हुआ? 6%। तो ये सिर्फ उदाहरण था। 6% अगर होता किसी जगह का, शहर का रेंटल यील्ड, तो बहुत अच्छा होता। ये भारतवर्ष का मानचित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा रेंटल यील्ड कौन सा शहर का है? बड़ौदा। सबसे खराब रेंटल यील्ड कौन सा शहर का है? वाइजैग 1.98। मेरा शहर जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, कलकत्ता 3.35। सो यू नो, नोवेयर दिस इज मोर देन 6%। 6% से ज़्यादा जो आपका महंगाई है, जो मैंने दिखाया, nowhere real estate is more than 6%. So one has to realize this and then go ahead. अभी मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया। 1994 में आई वेंट बैक। आई एम ए जादूगर, मैं एक जिन हूँ। मैंने 3 लाख रुपया लिया। 1 लाख रुपया मैंने डाला सोना में। ये वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। तो आई पुट इट इन गोल्ड। 1 lakh rupees I put it in fixed deposit, and another lakh rupees I put it in Nifty. Right? 1994 कितने साल हुए? 30 years, 30 साल। 30 years। 1994 में लाख रुपया मैंने डाला सेंसेक्स में, लाख रुपया डाला मैंने फिक्स डिपॉजिट में, लाख रुपया डाला मैंने सोना में, गोल्ड में। तो जो गोल्ड वाला है उसका वैल्यूएशन 30 साल बाद हुआ 13,65,000। जो फिक्स डिपॉजिट वाला है उसका सालों में हुआ 14 लाख। लेकिन जो सेंसेक्स वाला है उसका हुआ करीबन 32 लाख। लेकिन हमें समझ नहीं आता है क्योंकि सेंसेक्स ऊपर नीचे वोलेटाइल होता है। द फियर ऑफ अननोन helps us understand that Sensex is not the right metrics. But 6% से ऊपर तीनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है? Sensex. So, लेकिन इसके बावजूद Sensex सबसे ऊपर है, आप सब समझते हो, फैंटास्टिक। बट देन इसके बावजूद भी इक्विटी का निवेश का आप देखिए सिर्फ 5% से कम है इन्वेस्टर्स इन इक्विटीज। सो प्रॉपर्टी, गोल्ड, बैंक डिपॉजिट्स इट्स 80%, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद पीपीएफ, उसके बाद इक्विटी, उसके बाद कैश। सो ये एक पहलू है जो मैं आप लोगों को सबको समझाना चाहता था। ये बहुत बड़ी बात है निवेश की बातों में, राइट? 25 साल का हिस्ट्री में दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि दीज आर ऑल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ निफ्टी। जो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है। निफ्टी 50 कुछ नहीं है, सेंसेक्स का ही एक और पहलू है, मार्केट का एक इंडेक्स है। उसमें 5 साल नेगेटिव रिटर्न रहा और 20 साल पॉजिटिव रिटर्न रहा 25 साल का रिकॉर्ड में। और हालांकि इसने कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, साल दर साल इन्होंने 14% का रिटर्न दिया। रेंज ऑफ पॉजिटिव रिटर्न्स 3% से 76%, रेंज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स -4 से -52। वाई डोंट वी इन्वेस्ट इन इक्विटीज? हम लोग क्यों निवेश नहीं करते हैं इक्विटी में? इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद भी 32 लाख, 1,32,00,000 बन गया, क्योंकि वी फियर द डाउन साइड। लेकिन देखिए 30 साल का पूरा कैटेगरी में आप देखोगे 5 साल ही नेगेटिव है, 20 साल पॉजिटिव है। सो ओवर ए लॉन्ग टर्म एवरीथिंग हाइटन्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू शुड सी। 2 चीज़ों का करेक्शन होता है। एक होता है भाव गिरना, उसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन। दूसरा होता है कि टाइम रह गया, मेरा फ्लैट का भाव कहीं गया नहीं, उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ करेक्शंस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओवर अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम 2007 टू 2023, पिछले 17-18 सालों में प्राइस करेक्शन के समय मार्केट गिरता गया,
लेकिन जब मार्केट नीचे था लोगों ने पैसे निकाले। ये वर्टिकल बार चार्ट जो नेगेटिव है, लोगों ने पैसे निकाले। जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया लोग पैसे डालते गए। तो ये है डर और ये है लालच। दिस इज फियर विच इज डर एंड दिस इज लालच। और ये लालच और डर, लालच और डर, ये लालच और डर के बीच में ऑसिलेट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजंस। कोई तीसरा पहलू नहीं है। मैं 24 साल से काम कर रहा हूं। एवरी डिसीजन व्हाट यू टेक इन इन्वेस्टमेंट्स इज ऑसिलेटिंग लाइक ए पेंडुलम ऑफ योर वॉच बिटवीन लालच एंड डर, लालच एंड डर। होना चाहिए इसको उल्टा। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब लोगों को पैसे निकालना चाहिए, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तब लोगों को पैसे डालना चाहिए। तो ये प्रतिच्छवि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 30 साल का डेटा मैं दिखाऊं और इन्वेस्टर का बिहेवियर दिखाऊं कि उन लोगों ने पैसे कब निकाले और पैसे कब डाले। दिस इज अनदर निवेश की बातों में से दूसरी बात विच आई वांट टू मेक and keep in mind before you walk out of this auditorium today. And I'm sure you have eminent speakers like Swaroop, Ravi coming up. I'm sure they will also touch upon some of these points when they speak. सिंपल सी बात, लालच और डर हमारे ड्राइविंग डिसीजंस हैं। एक छोटा सा क्विज खेलते हैं और उस क्विज खेलने के लिए आप लोग सिर्फ वहीं से आवाज़ देंगे ना, मेरे को आंसर मिल जाएगा। फंड ए है 15% रिटर्न दिया, फंड बी 20% रिटर्न दिया। कौन सा फंड अच्छा हुआ? बी। फैंटास्टिक। अभी मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूं। फंड बी का रिस्क है 40, फंड ए का रिस्क है 5। कौन सा फंड अच्छा है? देखो, एक सवाल में पूरा डिसीजन बदल दिया मैंने। सो डोंट लुक एट ओनली रिटर्न्स, यू हैव टू लुक एट रिटर्न्स विज़ावी द रिस्क। तो जब दोनों पहलू आपका फाइनेंशियल प्लानर जांच के समझ के आपके सामने रखेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि व्हाट इज रिटर्न, व्हाट इज रिस्क। वो चीज़ सिर्फ रिटर्न से नहीं समझ में आएगा। दूसरी पहलू, मेरे पास लाख रुपया है, सिद्धार्थ बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें पैसा लगाने चाहूँ? मैं अभी भिलाई में था लास्ट वीक, सब कुछ खत्म हो गया, लोगों ने सुन लिया मेरे को। उसके बाद कोने में जाके बोला बेस्ट फंड कौन सा है बता दीजिए। तो मैंने बोला आपने सुना मैंने क्या बोला? हाँ हाँ सर समझ लिए सब, बता दीजिए मुझे 2 फंड, मैं उसी में निवेश करूँगा। क्या होता है ना, यू हैव टू हैव ए गोल, और उस गोल को जब मैं इंडिया को बोलता हूँ 32 रन्स नीडेड टू विन एंड 4 ओवर्स लेफ्ट, देयर इज ए गोल एंड देयर इज ए रोड मैप। अभी किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सोचता है कि 36 रन है और 6 ओवर है। किसी का फाइनेंशियल प्लानिंग में ये हो सकता है कि 36 रन चाहिए लेकिन 100 ओवर है। इट डिपेंड्स, किसका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, किसका ब्लड शुगर कैसा है, किसका, एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। इट कैन नॉट बी वन स्ट्रोक ऑल फोक्स, इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड, क्योंकि सबका LDL, HDL, ब्लड शुगर, एवरीबडी हैज डिफरेंट, इट कैन नॉट बी सेम। ओके, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एंड यू नो, चौथी वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर दैट स्वरूप एंड रवि वुड ऑल्सो allude टू दिस। एक सिमुलेशन किया गया था, मैं पढ़ रहा था अभी फ्लाइट में आते आते, जो 1 साल का बेस्ट फंड है ना, वो 1 साल का बेस्ट फंड चार्ट किया जाता है, उसका 5 साल बाद ना वो बेस्ट नहीं रहते। फिर उसके 5 साल बाद जब फ्लाइट फंड्स निकाले जाते हैं जो बेस्ट है, उसके 5 साल बाद वो फंड्स फिर बेस्ट नहीं रहते। सो जो ऊपर जाता है ना वो नीचे आता है, और जो नीचे जाता है वो ऊपर आता है। सो रिवर्सल टू मीन इज ए ग्रेविटेशनल mantra. You cannot defy it. It happens. 5 years can become 6 years, 6 years can become 4 years, but it happens.
And never ignore the power of compounding. I'm not touching on this. Why this decade belongs to India? 3-4 पहलू. India fastest growing economy है. आपको दिख रहा है 6.3, बट आपको लगेगा 7.5-8% का ग्रोथ है, तो सिद्धार्थ 6.3 क्यों दिखा रहा है? ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, रियल जीडीपी है, इसलिए 6.3 दिखा रहा हूँ. अक्रॉस ऑल द कंट्रीज इंडिया इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट. देन फॉर मी 2013 में इंडिया था 10वें नंबर पे, 2023 में इंडिया है 5वें नंबर पे, और 2028 में इंडिया का उम्मीद है कि इंडिया 3rd नंबर पे. मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा रैंक पे हैं, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द ट्रेजेक्टरी गोइंग. ये एक सिंपल, ये कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, बट आप लोगों को बहुत सिंपल से बता रहा हूँ. 2021 में 8 से 28 लाख वाले इनकम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया वॉज जस्ट 6 करोड़. 6 करोड़ हाउस होल्ड थे 2021 में जिनका आमदनी सालाना 8 से 28 लाख के बीच में था. 2031 में ये नंबर बढ़ के होने वाला है 17 करोड़. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि लोगों के पास बहुत पैसे आने वाले हैं. द जॉब्स आर गोइंग टू गो फॉर अ राइज. द काइंड ऑफ emoluments, the salaries, the compensation are all going to go up. A lot of wealth creation will get created. So it's very important to see the rise of middle class in India over the next 10 years. So now it comes to the second last section of my presentation. समझ लिए सारी चीज़ें, बट इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है मेरे इन्वेस्ट करने का? तो यू नो वर्ल्ड वॉर 2 में, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे. वर्ल्ड वॉर 2 में द क्राइसिस लेड फॉर द सुपर पावर टू मूव फ्रॉम यूके टू द यूएस. उसके बाद 1970s में यूएस में स्टैगफ्लेशन हुआ, और उसके बाद पावर शिफ्ट हुआ जापान में. 1990s में क्राइसिस इन जापान लेड टू द इमरजेंस इन चाइना, और 2024 में, जोर से बोलो यार, देश का नाम ले रहे हो. फैंटास्टिक. सो द पावर शिफ्टेड फ्रॉम is in the process, is in the roadmap of shifting from China to India. ये आप लोगों की सोच है, आप लोगों की डिसीजन है, आप लोगों की समझ है कि आपको इस जर्नी में निवेश करना है कि नहीं. बट नुकसान देश का भी होगा, नुकसान आपका भी होगा अगर इस जर्नी में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे. सो दिस डिकेड, एज आई सेड इन माई इनिशियल स्लाइड, belongs to India, and we have to feel it, understand it, and believe in it, because there are multiple data points, there are multiple structural reforms which is happening positive for India and the economy. ये एक दूसरा पहलू है. सब कुछ खराब हो रहा है ना, इतने सारे क्राइसिस हुए देश में, उसके बाद हमेशा मार्केट गिरा है. ये सिद्धार्थ कैसे बोल रहा है कि मार्केट अच्छा करेगा? कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं. हालांकि कारगिल वॉर है, इराक वॉर है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है. मैं एमबीए कर रहा था इस समय, जब मेरा ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आता था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. थाई का बाट जो है ना, डिवैल्यू हो गया था. आई वाज डूइंग एमबीए दैट टाइम. सो यू नो कोविड-19 पैंडेमिक का नंबर लेते हैं, 38% नेगेटिव 2020 में कोविड आया था. इतने सारा नेगेटिव हो गया और लोग डर जाते हैं. वही लालच और डर, लालच और डर. लेकिन उसके बाद देखिए, एक साल बाद कोविड का रिटर्न, कोविड वाला साल का रिटर्न -40 से +77. 3 साल बाद 30%, 28.97 टू बी प्रिसाइज, ईयर ऑन ईयर. सो 3 years इट वॉज ऑलमोस्ट 90. एंड 5 साल बाद जब मैं दोबारा, विवेक जी मुझे बुलाएंगे, ये नंबर भी रखूंगा, पीफा. अभी 5 साल हुआ नहीं कोविड का. So what matters is your discipline, your patience, your idea of staying invested and not react impulsively कि मेरा तो नुकसान हो गया, पैसे निकाल लेना चाहिए. It's very important to stay invested, because that what propels you to get more money. 10 principles of finance
पर्सनल फाइनेंस, ये मैं एक बुक पढ़ रहा था, मॉर्गन हाउसल बोल के एक राइटर है, साइकोलॉजी ऑफ मनी बोल के एक बुक है। 2 बुक मैंने पढ़ा और उसका जो निष्कर्ष है, जो जिस्ट है, जो समरी है, मैं आप लोगों के लिए लेके आया। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सेंसिकल है, लेकिन इस चीज़ का 10% 20% भी आप घर लेके जा सकते हो तो आई विल कंसिडर माई पुणे ट्रिप सक्सेसफुल। नंबर 1, वॉरेन बुफे प्रिंसिपल, ये बहुत मशहूर आदमी है। इनका जो ही इज़ वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट इनका जो वेल्थ है ना, उसका 90% बना जब ये 55 साल के हुए, उसके बाद। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90% ऑफ हिज वेल्थ हैज़ गॉट क्रिएटेड ओनली आफ्टर 55 years. So he was not born rich. He calls himself an ovarian lottery, कि उस समय, इस समय वो पैदे हुए, तो राइट। नेक्स्ट वन, द डू नथिंग प्रिंसिपल। एक वस्तु है हमारे पास ना, मोबाइल फ़ोन। कोई दे के गया फंड, ये अच्छा नहीं कर रहा है यार, ये सिप में यार इसको चेंज करवाते। तो मोबाइल सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि हम उसी से कई सारे साइलोज सोचते रहते हैं। तो डू इनएक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। कोई एक्शन ना लेना भी एक एक्शन है। आप रिव्यू जरूर करो, लेकिन जरूरी नहीं है आप उसको छेड़ो। तीसरा, हम बाकी सब डिसीजंस हम लोग से पूछ के लेते हैं कि बेटा को या बेटी को कौन सा यूनिवर्सिटी में डालना है, लेकिन निवेश का जो हार्ड अर्न्ड पैसा है, उसके लिए हम ओवर ए ड्रिंक या ओवर ए लंच लोगों से पूछ लेते हैं, हाँ भाई तूने पैसे बनाए, अच्छा इसी में पैसे डाल देते हैं। हम सोचते नहीं हैं हाउ नॉट टू टेक क्यूज फ्रॉम अदर्स, क्योंकि क्रिप्टो बोल के एक चीज़ है, लोग सुन सुन के इन्वेस्ट करने लगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ, इक्विटीज में रिस्क है, ये मैं ज़रूर बोलूँगा, बट देर इज अ रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज ऑल्सो। इक्विटीज इज डेफिनेटली अ रिस्की प्रोपोजिशन, बट उसका भी ना इन्वेस्ट करना भी एक रिस्क है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन 6% है, और अगर आप माइनस में इन्वेस्ट करोगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे, आप रिटायरमेंट में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैश बहुत ज़रूरी है। 6 महीने का खर्चा आपका बैंक में हमेशा होना चाहिए। द स्टैंड अप कॉमेडी प्रिंसिपल, यहाँ पे मैं 30 सेकेंड्स लूँगा। स्टैंड अप कॉमेडी प्रिंसिपल ऐसा है कि हम जब छोटे छोटे कॉमेडी शोज़ में जाते हैं, तब हर जोक में हमें हंसी नहीं आती है। कई बार हम बाजू वाला को देख के देखते, ये भी हंस रहा है, मैं भी हंस दूँ, है कि नहीं? लेकिन जब कपिल शर्मा का शो होता है, तब सब हंसता है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि वो अच्छे से रिहर्स्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे सेलिब्रिटी आती है, क्योंकि वहाँ पे मेहनत होता है। तो एक आध गलतियाँ हो सकता है निवेश का जर्नी में भी। तो छोटे छोटे जैसे कॉमेडीज हुए ना, वहाँ पे आप लोगों का एक आध गलती हो सकता है, बट ये सोच मत रखिए कि एक गलती हो गया तो आगे वाला कपिल शर्मा शो का जो जर्नी है मैं मिस कर दूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉन्गर टर्म विजन। सेविंग फॉर द सेक ऑफ सेविंग, आपको ये नैक बनाना है कि आप जब पैसे कमाते हो उसके बाद पहले आप सेव करो, उसके बाद स्पेंड करो। बोलना बहुत आसान है, लेकिन हम करते हैं पहले स्पेंड उसके बाद सेव, राइट? कीपिंग अप विद द शर्मास, इसको बोलता है मेरा बेटा, टर्म यूज़ करता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो हम लोग सोचते हैं शर्मा जी ने लाल गाड़ी लिया, गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, तो ये गाड़ी शर्मा जी ने लिया, हम शर्मा जी के लिए खुश नहीं होते हैं, हम सोचते हैं हम कब खरीदेंगे ये गाड़ी। सो नॉट नेसेसरी, यू नीड नॉट go and benchmark yourself and spend more and devalue your investments, right? Being rich और wealthy दोनों में फ़र्क है। अमीर और wealthy में फ़र्क है। अमीर कौन है? अमीर वो है जिनको 3 करोड़ का हाउस लोन बैंक अप्रूव कर देता है। ही इज़ अ रिच गाय बिकॉज उसका सिविल स्कोर अच्छा है, वो 3 करोड़ रुपया कमा के वापस कर सकता है, बहुत अमीर आदमी है। लेकिन wealthy वो है जिसको लोन ही नहीं लेना पड़ता है। और वेल्दी वाला आदमी को आप देख के पहचानोगे नहीं कि इसके पास बहुत पैसा है। मार्क जुकरबर्ग हैज 4 टी-शर्ट्स and 2 jeans. He is one of the wealthiest person in the world. He just has 4 t-shirts and 2 jeans, and he wears in every conference, in every discussion, including the Jamnagar one.
So what you have to realize is rich and wealthy are two different connotations. And finally, highest form of wealth. What is the highest form of wealth? The highest form of wealth is not having money. The highest form of wealth is being able to appreciate, reciprocate, get up in the morning and do whatever you like, go on a vacation, buy something for which you never have to take a loan, and live your life to the full course. That is being wealthy. Okay? Let's get going. I've got 5, the time, I'm on time, but let's look at this data. Mr. Warren Buffett, 25 साल का, this is a favorite slide of ours, 25 साल का जर्नी, 25 साल का जर्नी, अगर कोई स्टे फुल इन्वेस्टेड रहता है तो 1 लाख रुपया निफ्टी में 25 साल के लिए 13% का रिटर्न देता है. 25 साल कितना दिन? 365 into 25. Can somebody do a quick calculation for me? मोबाइल निकालो. मेरे को लगता है कोई मिलेनियल ही जवाब देगा. 9,000 दिन. So 9,000 दिन is what the total number of days. 25 साल कोई पूरा रहता है 9,000 दिन इन्वेस्टेड तो 13% का यील्ड आता है. उस 9,000 दिन से मैं अगर 5 दिन निकाल लूं जो बेस्ट है, 5 दिन, 9,000 दिन में से 5 दिन निकाल लूं जो बेस्ट है, आपका रिटर्न गिर जाता है 13 से 11. और मैं 10 दिन निकाल दूं तो आपका रिटर्न गिर जाता है 10. अभी आप बताइए 10 दिन 9,000 दिन में किसको पता रहेगा कि वो 10 दिन कौन से हैं? सो द ट्रिक इज टू स्टे इन्वेस्टेड एंड नॉट मूव इन एंड आउट. ये एक 25,000 का नॉर्मल SIP है. निफ्टी में हम लोगों ने किया 25 साल के लिए. आपका कॉर्पस हुआ 75 lakhs और आपका रिजल्टेंट कॉर्पस 25,000 का SIP फॉर 25 years 5,17,00,000. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पिक्चर अभी बाकी है. एंड पिक्चर बाकी ये है कि इसी को अगर 10% आप लोग स्टेप अप कर दोगे ना, इसी को अगर 10% आप लोग स्टेप अप कर दोगे, 25 का फर्स्ट 12 महीने आपने 25,000 किया, 13वां महीने में 25,000 का 10% 27,500, 26वां महीने में फिर उसका 10%, ऐसे करते करते इन्वेस्ट करते गए तो 2,95,00,000 आपका कैपिटल हुआ. रिजल्टेंट कॉर्पस हुआ 11 करोड़. जिसने छेड़छाड़ नहीं किया, जिसने कीप अप विद द शर्माज नहीं किया. वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर मुझे इंक्रीमेंट मिलता है 8% का तो उसमें से 6% मेरे को स्टेप अप करना है. सो डोंट डू SIP, डू SIP विद स्टेप अप. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP बाय द वे? सिस्टमैटिक. हाँ, परफेक्ट. और यू कैन कॉल इट स्लीप इन पीस. क्योंकि क्या होता है ना, एक ओल्ड हीरो होंडा ऐड है. मैं 1975 का बॉर्न हूँ. उस समय आता था एक ओल्ड हीरो होंडा ऐड, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट. डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल. लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब जरूरी है. रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल सब खेलना चाहिए टीम में. कोई एक खेलेगा दूसरा नहीं खेलेगा नहीं चलेगा. आपका पोर्टफोलियो भी क्रिकेट टीम है. प्लीज रियलाइज दिस. कल से पूछिएगा नहीं कि ये अच्छा कर रहा है ये बुरा कर रहा है. कभी ये अच्छा करेगा कभी वो बुरा करेगा. यू नीड ए गुड बैटिंग, यू नीड ए गुड फील्डिंग, यू नीड ए गुड बॉलर. दूसरा, हम इंडिया 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 कर रहे हैं 2009 से 2023. कितने साल हुए? 2010 to 2020, 14 साल. 14 साल में इंडिया वॉज बेस्ट 5 times, US was best 6 times, China was best 2 times. So while 70-80% should be India, but also do a 10-15% allocation in the US, in other economies which are better off, right? So diversification across the countries. सिर्फ इक्विटी में मत कीजिए, इक्विटी कीजिए, गोल्ड कीजिए, फिक्स्ड इनकम कीजिए,
निवेश में हर किस्म, हर तरह का एसेट क्लासेस चाहिए आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो सीमित रखने के लिए। सो जो मैंने शुरू में कहा था, इट्स टाइम टू चेंज द वे यू इन्वेस्ट, एंड फॉर दैट एक फंड मैनेजर है, आप सोचिए ऐसा है, एक फंड मैनेजर है जो एक फंड को रन कर रहा है और वो खरीद रहा है स्टॉक्स और वो बेच रहा है स्टॉक्स और फंड को रन कर रहा है। उसके ऊपर आपका फाइनेंशियल प्लानर है जो बोल रहा है ओके इस समय घुसिए और इस समय निकलिए। उसके ऊपर आप हो, इस समय मत घुसो, इस समय मत निकलो। सो 3 लोग काम कर रहे हैं एक ही पोर्टफोलियो में। सो इट इज इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड इन्वेस्टर रिटर्न, बिकॉज माई ब्लू चिप रिटर्न विल डिफर फ्रॉम समबडी एल्सेज ब्लू चिप रिटर्न। फंड एक ही है। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज द लालच एंड द डर, greed and fear. What we look at is performance and products. What we should look at is goal, asset allocation, products, and financial planner. Last slide. Most investors are smart, intelligent, hardworking, सबको सब कुछ पता है, बट इसके बावजूद उनको सक्सेस नहीं मिलता है। क्यों? ये इसलिए नहीं कि वो जानते नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो इसलिए है कि वो करते नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. I would now like to request Mr. Ramesh Barli, Balveer Chawla and Dhaval Chitre to please come up on stage and felicitate Mr. Siddharth Bhattacharya. We also have Mrs. Bhattacharya in the crowd, so I request her to please come up and accept a token of appreciation from us.